Good morning, students. Today we are going to start with the chapter number 2 of accountancy, class 11. Okay. Though it's a new subject for all of you, but we'll try that it's made easy for you to understand and enjoy. So, chapter number 2 is, though we were to start with chapter number 1, but before going to chapter number 1, let's understand some basic terms and terminologies which are being used in accountancy. Okay, then we will shift to chapter number 1. Okay, so here in chapter number 2, the first few things which I am going to discuss with you is, first thing is the business transaction. Okay, don't be surprised if you are finding that everything is written on board and I am just going to read it out. It's not just reading, it's for you, so that because many of you will not be having books, so you might be in need of certain content, written material, so it is written on the board. Okay. Business transaction basically is the result of the economic activities. Okay, if there are certain economic activities happening in any business, and those economic activities should be in terms of quantitative nature, पैसे का लेन देन होना ज़रूरी है. ओके, क्वांटिटेटिव चेंजेस आने ज़रूरी हैं, तभी वो इकोनॉमिक एक्टिविटी बिजनेस ट्रांजैक्शन मानी जाएगी. पहली चीज़ तो पहला एस्पेक्ट क्या है कि कोई इकोनॉमिक एक्टिविटी है जिसमें पैसे का लेन देन हो रहा है. ओके, जिसमें पैसे की you are getting some money or you are paying some money, in return that economic activity qualifies to be considered as business transaction. अब ये पैसा लेन देन ज़रूरी नहीं है कि इसमें आपने कुछ सॉलिड ट्रांजैक्शन की है. मतलब आपने किसी के पैसे लेने थे, किससे लेने थे, आपने पैसे ले लिए. ओके, तो मतलब सिंपल, मतलब घर के अंदर ही आपने लेन देन कर लिया. ओके, कोई पैसे थे, आपने अपनी पॉकेट से मदर से पैसे लिए, आपने वो कंज्यूम कर लिया, तो वो इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन नहीं है. मदर से आपने पैसे लिए और आप कुछ सामान लेके आए, जो बाकी बचे वो आपने वापस दे दिए. दैट्स नॉट क्वालिफाइज एज एन इकोनॉमिक एक्टिविटी. इट्स सिंपली दैट यू हैव रिसीव्ड सम मनी एज ए पॉकेट मनी फ्रॉम मदर, यू हैव परचेज सर्टेन गुड्स एंड रिमेनिंग मनी इज बीइंग गिवन. वो इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन नहीं कंसिडर, एक्टिविटी नहीं कंसिडर होगी. इकोनॉमिक एक्टिविटी कंसिडर करने के लिए देयर शुड बी बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज which either increases your assets or increases your liabilities, or decreases your assets or decreases your liabilities. तो यहाँ आपके पास इकोनॉमिक एक्टिविटीज में कोई खरीद बेच होनी चाहिए, बाय एनी लैंड और प्रॉपर्टी. ओके, और देयर इज चेंज इन एनी एसेट्स, और देयर इज चेंज इन एनी लोन. ओके, लाइबिलिटीज. ओके, सो दैट इज there should be certain changes in assets and liabilities in any business. Okay, means certain buying of assets, selling of assets, or certain buying increase of liabilities or decrease of liabilities should happen in any business, and that change of activities is considered where there is quantitative transaction also involved. Those economic activities are termed as business transaction. These transactions are happening either externally or internally. Okay, if it is considered as external business transaction, means buying and selling of goods and services is happening in two independent enterprises or two independent bodies who are buying and selling of goods and services. Okay, fine. Whereas if there is any transaction which is happening, like depreciation on the assets is happening, that is within the organization, something is happening. Okay, so for that it will be considered as internal transaction.
internal activities. So all those economic activities where there is buying, selling of assets, liabilities is increasing or decreasing, assets are increasing or decreasing, and there is certain transaction of monetary aspects in these economic activities, all these activities will be qualifying as business transactions. Okay. Then there is another aspect which is known as event. Event is the outcome of business transaction. It is not the business transaction, but it is an outcome of business transaction, and that is, we have said that it is the end result of the transaction. For example, we have written, we are going to discuss over here. X is a businessman who has started business with a capital of 5 lakh. अब आप कहोगे कि कैपिटल क्या होता है? कैपिटल वो पैसा जो एंटरप्रेन्योर ने अपने बिजनेस में लगाया है उस बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए, तो इसे हम ऑनर्स कैपिटल भी, ऑनर्स कैपिटल भी कहेंगे, ऑनर्स इक्विटी जिसको कहते हैं, या नेट वर्थ ऑफ द बिजनेस कहते हैं। तो ये आपके पास टर्म है कैपिटल। इट इज द अमाउंट इन्वेस्टेड बाय प्रोप्राइटर इन द बिजनेस। तो ये ऑनर्स इक्विटी भी होता है। अब यहाँ पे हम कहते हैं कि ये ऑनर्स इक्विटी कैसे हो गई, कि मार्केट में तो हम कहते हैं कि इक्विटी शेयर कैपिटल, तो जो शेयर्स लगाते हैं, तो शेयर जो लगाते हैं उन्होंने बिजनेस तो स्टार्ट नहीं किया होता, बट जो आस्पेक्ट है जिन्होंने शेयर खरीदे वो मालिक होते हैं कंपनी के, चाहे वो माइनॉरिटी शेयर होल्डर हों चाहे वो मेजॉरिटी, मगर वो मालिक होते हैं बिजनेस में। ओके। और सोल प्रोप्राइटर में मालिक और बिजनेस एक ही चीज़ है, तो जो उसने पैसा लगाया वो बिजनेस में पैसा लगा। अब बेसिकली जो कैपिटल में प्रोप्राइटर का पैसा ऑनर्स इक्विटी बनता है, वो बनता है डबल एंट्री बुक कीपिंग सिस्टम के हिसाब से, वो बाद में डिस्कस करेंगे। अभी इतना समझ लो कि कैपिटल क्या है, कि वो पैसा जो बिजनेस में प्रोप्राइटर ने लगाया है बिजनेस को चलाने के लिए, और इस पैसे को हम ये भी बोलते हैं ऑनर्स इक्विटी भी बोलते हैं, और हम इसे नेटवर्थ भी बोलते हैं। और इसको कैलकुलेट करने का सिस्टम क्या है, कैपिटल इज इक्वल टू एसेट्स माइनस लायबिलिटीज। ओके। तो ये जो पैसा बिजनेस में लगाया उसने, ऑनर ने, ये किस फॉर्म में हो सकता है, कुछ सामान लेके आया हो सकता है, कैश लेके आया हो सकता है, ठीक है, गुड्स, जैसे मान लो कि एक उसके पास प्लांट मशीनरी लेके आया है, कुछ कैश लेके आया है, कुछ फिज़िकल स्ट्रक्चर है, कोई एक बिल्डिंग है, बिल्डिंग भी उसने लाया है, तो वो सारे बिल्डिंग की जो टोटल वैल्यू होगी प्लस जो प्लांट की टोटल वैल्यू होगी प्लस जो कैश लेके आया वो बिजनेस को चलाने के लिए, वो सारा का सारा किसके लिए क्वालिफाई करता है, कैपिटल के लिए। तो कैपिटल कैन बी इक्वल टू कैश प्लस एसेट्स लाइक बिल्डिंग प्लस मशीनरी, और हो सकता है कुछ वो उधार भी लेकर आया है, तो इसीलिए हम कैपिटल को कैलकुलेट करते हैं, कैपिटल इज इक्वल टू एसेट्स माइनस लायबिलिटीज, and it is known as internal liability of the business. Capital is the internal liability of the business, और जो ये वाली liability है आपके पास, ये वाली liability, ये internal liability है, ये external liability है। ये वाली liability आपकी क्या है, एक्सटर्नल लायबिलिटी है, और कैपिटल क्या होता है आपके पास, इंटरनल लायबिलिटी होता है। तो ये फ़र्क है कैपिटल में, और जो बाकी उधार आप लेते हो, तो कैपिटल क्या है, वो पैसा जो प्रोप्राइटर ने अपने बिजनेस में लगाया है, मतलब मालिक, प्रोप्राइटर मतलब मालिक ने, जो अपना बिजनेस का मालिक जो है उसने, ऑनर मालिक बेटर, ऑनर जो है उसने अपने बिजनेस में जो पैसा लगाया है उस बिजनेस को चलाने के लिए, वो पैसा वो कैश, बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी किसी भी फॉर्म में लेके आ सकता है, उस सारे को हम क्या कहेंगे, कैपिटल। और ये एक, इसे हम नेटवर्थ भी कहते हैं, और ये इंटरनल लायबिलिटी है किसी बिजनेस की। और जो उधार वो बाहर से, जो हमने यहाँ पे दिखाया है,
ये वाली लायबिलिटी जो दिखाई है ये है एक्सटर्नल लायबिलिटी। सो फर्क है, एक जो बैंक से आप लोन लेते हो वो एक्सटर्नल लायबिलिटी हो जाता है, और जो ऑनर ने अपना पैसा लगाया है वो बिजनेस के लिए इंटरनल लायबिलिटी है। और ये किसके अकॉर्डिंग है, डुअल अकाउंटिंग प्रिंसिपल, ये डबल अकाउंटिंग सिस्टम या इसे के हिसाब से इसको किया जा रहा है। ओके, बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट के हिसाब से। ओके, बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट हमें बताएगा, जो बाद में हम पढ़ेंगे कि कैपिटल आपकी इंटरनल लायबिलिटी क्यों है, क्योंकि बिजनेस और उसका ऑनर जॉइंट स्टॉक कंपनी में दो अलग अलग इंडिविजुअल हो जाते हैं, तो हम इसे डिटेल में तब डिस्कस करेंगे। तो बिजनेस में जो ऑनर अपना पैसा लगाता है वो क्या है, इंटरनल लायबिलिटी। तो हम क्या डिस्कस कर रहे थे, एग्जाम्पल डिस्कस कर रहे थे इवेंट का, कि इवेंट क्या है, इवेंट है एक एंड रिजल्ट, ओके, आउटकम ऑफ द ट्रांजैक्शन। जो ट्रांजैक्शन हमने की उसका आउटकम क्या है। हमने क्या ट्रांजैक्शन की थी, हमने एक बिजनेस स्टार्ट किया, उस बिजनेस में हमने 5 लाख का कैपिटल लगाया, जिसमें से 4 लाख के हमने गुड्स खरीदे, मतलब हमने कोई सामान खरीदा बेचने के लिए। गुड्स क्या होते हैं, वो परचेजेस और गुड्स एक ही चीज़ है, मतलब हम अगर कहें परचेजेस और गुड्स, दीज आर वन एंड द सेम थिंग। अब हम इसे क्यों सेम कहते हैं, क्योंकि दीज आर द गुड्स और दीज आर द एलिमेंट्स विच आर परचेज फॉर रीसेल पर्पस टू कैरी आउट द बिजनेस एक्टिविटीज एंड अर्न प्रॉफिट्स और सफर एंड समटाइम्स वी सफर लॉसेज ऑल्सो। सो परचेजेज और गुड्स की डेफिनेशन एक ही है, दीज आर द एलिमेंट्स विच आर बीइंग परचेज्ड फॉर द पर्पस ऑफ फॉर दी रीसेल पर्पज इन द बिजनेस। तो अब यहाँ पे क्या हुआ, हमने 5 लाख की कैपिटल लगाई थी और हमने कुछ गुड्स खरीदे, ओके, कितने के, 4 लाख के, और उनमें से इन 4 में से 3/4 ऑफ द गुड्स वर सोल्ड फॉर हाउ मच, 3,80,000। मतलब हमने ट्रांजैक्शन क्या किया है, 5 लाख की कैपिटल लेके आए, उसमें से 4 लाख रुपए यूज़ किए परचेज करने में गुड्स को, और वो गुड्स में से 3/4 मतलब 75% ऑफ जो वो 4 लाख के गुड्स थे उनको हमने मार्केट में सेल कर दिया 3,80,000 पे। और जहाँ से हम बिजनेस एक्टिविटी कैरी आउट कर रहे थे वहाँ हमने रेंट पे किया कितना, 20,000 रुपीज़। ओके, तो अब हम इसे कैलकुलेट कर लेते हैं। प्रॉफिट अल्टीमेटली क्या है, हमारा इवेंट क्या है, प्रॉफिट इज द event of this transaction। okay, profit is the event of this transaction, मतलब outcome of this transaction। तो प्रॉफिट कितना कमाया, प्रॉफिट क्या है, सेल प्राइस माइनस कॉस्ट माइनस रेंट। सेल प्राइस थी 3,80,000, हमने बेचा कितना था गुड्स, 4 लाख का 3/4 बेचा था, तो 4 लाख का 3/4 कितना आया, 3 लाख रुपए। ओके, 4 लाख का कितना आया, 3 लाख रुपए। वो बेचा कितने का, 3,80,000 रुपए का। ओके, तो सेल माइनस कॉस्ट, कॉस्ट कितनी है, 3 लाख, सेल प्राइस है 3,80,000, और रेंट कितना दिया है हमने, 20,000। तो ये जो हमारा है प्रॉफिट, दिस इज द इवेंट। ओके, दिस इज द इवेंट इन दिस ट्रांजैक्शन। तो ये हमारे पास है कि इवेंट क्या होता है, कैपिटल क्या होता है। अब आ जाते हैं हम वर्ड अकाउंट। हमें बहुत सारे पूछते हैं कि अकाउंट क्या है, अकाउंट क्या है। अकाउंट बेसिकली वो ऐसी जगह है जहाँ किसी इंडिविजुअल एसेट्स या लाइबिलिटीज़ या एक्सपेंसेस या इनकम्स के बारे में सारी इंफॉर्मेशन अवेलेबल है। एक ऐसा स्पेस, एक ऐसी प्लेस जहाँ इंडिविजुअल की, एसेट की, लाइबिलिटी की, एक्सपेंसेस की, इनकम्स की, मतलब अलग अलग अकाउंट्स बनते हैं, तो इनकी डिटेल्ड इंफॉर्मेशन अवेलेबल है। और इनको हम जब बनाते हैं, दे आर बीइंग फॉर्म्ड एज पर द सेट रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट विच विल बी डिस्कस्ड इन दी फर्दर चैप्टर्स। ओके, सो डेबिट बेसिकली क्या होता है, जो ट्रेडिशनली फिक्स किया गया है from ages, debit is on the left hand side of the account
and credit is on the right side of an account. Okay, and debit is abbreviated as DR and credit is abbreviated as CR. Okay, so that is the another important aspect. Then there is the another last in this series is what in this lecture is that drawings. Okay, ड्राइंग्स क्या है? ड्राइंग्स वो पैसा जो प्रोप्राइटर ने बिजनेस में से निकाला फॉर प्राइवेट पर्पस, फॉर यूजिंग इट फॉर पेमेंट ऑफ प्राइवेट एक्सपेंसेस। मतलब अपने कुछ पैसा, मतलब एक तो प्रॉफिट आपको मिल रहा है मगर क्या हुआ, प्रोप्राइटर को कुछ और पैसा चाहिए था तो उसने क्या किया, बिजनेस में से कुछ पैसा विड्रॉ किया। ये परमानेंट विड्रॉल नहीं है, ये टेम्परेरी विड्रॉल है, ये परमानेंट विड्रॉल नहीं है आपका, ये टेम्परेरी विड्रॉल है। दिस मनी विल बी रिटर्न्ड बैक टू द बिजनेस with interest on those drawings, okay, on that money which has been withdrawn for private consumption, but it will be returned. So but it is that part of money which has been taken by the proprietor out of the business for payment of his private expenses or for his personal usage, that is known as drawings. Okay, now we are going to understand the other part of today's lecture. Okay, that is what is liability and what is an asset. Okay, liabilities are basically that amount of money which we owe to somebody else। मतलब हमने किसी को पैसा देना है, वो हमारे लिए क्या है, लाइबिलिटी है। इसे हम देनदारी भी बोलते हैं। ओके, so whatever the amount we owe to outsiders except the owner of the business or the proprietor of the business, all that money is coming under the definition of liabilities. So liabilities are calculated as liability is equal to asset minus capital. Okay, liabilities are equal to asset minus capital. अब यहाँ हमारे पास क्या है कि लाइबिलिटी कैसे, एग्जाम्पल एक समझा जा रहा है कि मान लीजिए आपके पास करंट अकाउंट है। जनरली बिजनेसमैन के दो अकाउंट होते हैं, एक सेविंग अकाउंट, एक करंट अकाउंट। सेविंग अकाउंट में से आप पैसा ओवरड्रॉ नहीं कर सकते हो, उतना ही पैसा विड्रॉ कर सकते हो जितना बैंक के अंदर पैसा है। मगर करंट अकाउंट में आपकी एक फाइनेंशियल लिमिट बनाई होती है बैंक ने, क्योंकि वो आपकी फाइनेंशियल कंडीशन के ऊपर या ट्रांजैक्शंस के टर्नओवर के ऊपर बेस्ड होती है। तो आप क्या करते हो, उस पैसे को यूज़ कर लेते हो, उस ओवरड्राफ्ट लिमिट को आप यूज़ करते हो फॉर कैरिंग आउट द बिजनेस एक्टिविटीज़, एंड दैट extra amount which you have overdrawn than the level of the funds available in your account, that money is now becoming a liability on you. You have to pay back it to the bank. This is a credit from the bank and you have to pay back that money back to the bank with interest on that overdrawn money, and that is known as your liability. Okay, तो लाइबिलिटीज दो तरह की होती हैं, एक होती है इंटरनल लाइबिलिटी। ओके, ये बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट के अकॉर्डिंग हम डिफाइन करते हैं कि बिजनेस और उसका ऑनर दो डिफरेंट एंटिटीज़ हैं। तो जो ऑनर है वो बिजनेस में पैसा लगा रहा है एंड दैट इज़ एन इंटरनल लाइबिलिटी, और ये कंसेप्ट जॉइंट स्टॉक कंपनी में एप्लीकेबल होता है। ओके, दैट इज कैपिटल और अकमुलेटेड प्रॉफिट, ये दोनों एस्पेक्ट्स क्या हैं जो ऑनर से रिलेटेड हैं, ये इंटरनल लायबिलिटी हैं। एक्सटर्नल लायबिलिटी क्या है, वो सारा पैसा जो हमने थर्ड पर्सन से रिसीव करना है या हमने उधार लिया तो थर्ड पर्सन हमने पे करना है थर्ड पर्सन को, जो भी पैसा, उसे हम किस डेफिनेशन में लेते हैं, एक्सटर्नल लायबिलिटी में। ओके, वी हैव टू पे टू दी आउटसाइडर्स। तो उधार जो बाहर से हमने किसी और से लिया है उसको जब वो पैसा वापस करना है उसे हम एक्सटर्नल लायबिलिटी बोलते हैं। अब ये लायबिलिटीज इनका टाइम पीरियड दो तरह से है, एक है करंट लायबिलिटीज, दूसरी है नॉन करंट लायबिलिटीज। करंट लायबिलिटीज का दूसरा नाम है शॉर्ट टर्म लायबिलिटीज। ये जनरली वेरी करती हैं फ्रॉम द पीरियड ऑफ 1 day to 1 year। ओके,
तो जनरली 3 महीने 6 महीने तक का शॉर्ट टर्म लोन होता है, बट 1 साल तक जा सकता है। तो जो पैसा 1 साल के अंदर अंदर रिकवर करना पड़ता है थर्ड पार्टी से, वो क्या है आपका करंट लायबिलिटी। मतलब आपने उधार लिया है थर्ड पार्टी से, तो उसने आपसे रिकवर करना है विद इन 1 ईयर। आपसे पैसा लेना है उसने, मतलब यहाँ आप क्रेडिटर हो किसी थर्ड पार्टी के लिए, तो उसने जो आपसे पैसा लेना है विद इन 1 ईयर, जो भी आपने पेमेंट्स करनी है थर्ड पार्टीज को, वो किस में आती हैं, शॉर्ट टर्म लायबिलिटीज में। इसके एग्जांपल्स हैं क्रेडिटर्स, बिल्स पेबल, शॉर्ट टर्म लोन, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस एंड अनअर्न्ड इनकम। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस वो हैं वो पैसा जो अभी आपने पे करना है। प्रीपेड अनअर्न्ड इनकम वो है वो इनकम जो आपने अभी अर्न करनी है, मगर आपके पास पैसा आ चुका है तो वो अभी आपकी नहीं हुई, तो आपसे वो वापस भी मांगा जा सकता है। और वो पैसा जो आपने देना है किसी का मगर अभी तक नहीं दिया, तो वो भी आपके लिए क्या बन जाएगी, लायबिलिटी बन जाएगी। फिर है नॉन करंट लायबिलिटीज, वो लायबिलिटीज जिसका टाइम पीरियड 1 साल से ज़्यादा है, विच कैन वेरी फ्रॉम 3 to 5 years और मोर देन 5 years ऑल्सो। अगर वो टाइम पीरियड 3 to 5 years का है तो हम उसे कहते हैं मिड टर्म लायबिलिटीज़ कहते हैं। और अगर वो मतलब वो फुली लॉन्ग टर्म नहीं कंसिडर की जाती, और अगर आपकी लायबिलिटीज़ 5 साल से ज़्यादा की लायबिलिटीज़ होगी तो वो लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज़ में आ जाती हैं। ओके, तो जो आपका लॉन्ग टर्म लोन्स आपने लिए हैं, या आपने मॉर्टगेज जो मतलब कुछ गारंटी दे के, प्रॉपर्टी की गारंटी दे के, शेयर्स की, गोल्ड की, किसी भी चीज़ की गारंटी दे के आपने जो लोन उठाया उसे मॉर्टगेज डेब्ट कहते हैं। ओके, और आपने जो डिबेंचर्स खरीदे हैं, कंपनी ने डिबेंचर्स बेचे हैं, तो अब उसने पैसा लिया लोगों से उधार पे, आफ्टर ए पर्टिकुलर टाइम पीरियड 5 साल या 7 साल के बाद वो रीपे करना ही करना पड़ेगा। तो वो डिबेंचर्स कंपनी के लिए क्या है, लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज़ हैं। तो ये हमारे पास नॉन करंट लायबिलिटीज आ गई, और ये हमारे पास क्या आ गया, करंट लायबिलिटीज आ गई। अब हम चलते हैं एसेट्स पे। वो सारे एलिमेंट्स जो आपने ओन कर रखे हैं, या जो बिजनेस की प्रॉपर्टी हैं, मतलब बिजनेस ने ऑन कर रखे हैं, या बिजनेस के पोजेशन में हैं, या बिजनेस की प्रॉपर्टी है, मतलब विच इज इन पोजेशन और इज प्रॉपर्टी ऑफ बिजनेस, जिससे आप पैसा जनरेट कर सकते हो और जिसकी हेल्प से आप बिजनेस को स्मूथली चला सकते हो। वो सारी एस्पेक्ट्स किसके अंदर आते हैं, वो आते हैं आपके किसमें, एसेट्स में। ओके, तो वो सारे चीज़ें जो आपके बिजनेस को स्मूथली चलाने में हेल्प करते हैं। ओके, और जो आपके बिजनेस को अर्न करने में हेल्प करते हैं, वो सारे के सारे जो एलिमेंट्स हैं वो किस में आते हैं, आपके एसेट्स में आते हैं। और ये एसेट्स ज़रूरी है कि मनी टर्म्स में मेजरेबल होने चाहिए। अब इन एसेट्स को हमने फर्दर डिफाइन किया, करंट एसेट्स, नॉन करंट एसेट्स एंड फिक्टिशियस एसेट्स। करंट एसेट्स वो एसेट्स हैं जो अवेलेबल हैं फॉर ए शॉर्ट टर्म पीरियड ऑफ 1 day to 1 year। ओके, जैसे कैश अवेलेबल है, डेटर्स हैं, मतलब हमने किसी को उधार दे रखा है, वो हमने उससे रिकवर करना है, तो डेटर्स है वो हमारे लिए। हमने किसी से उधार उठाया तो हम क्रेडिटर बन जाते हैं। ओके, बिल रिसीवेबल, मतलब हमने किसी को पैसे दे रखे हैं, हमने बिल लिख के दे दिया, अब उससे पैसे रिकवर करने हैं। एक्रूड एक्सपेंसेस हैं, एक्रूड एक्सपेंसेस मतलब वो पैसे जो हमने क्या कहते हैं एडवांस में एक्रूड है एक्सपेंसेस हमारे पास, जिसको कहते हैं एक्रूड इनकम्स है हमारे पास। वो पैसा जो हमने अभी लेना है, मतलब कमा तो लिया मगर हमें मिला नहीं है, तो वो पैसा जो हमने लेना है किसी से जिससे हमने कमाया है, वो किस में आ गया, एक्रूड इनकम में आ गया। फिर प्रीपेड एक्सपेंसेस, जो खर्चे आपने एडवांस में पे कर दिया, अभी आपका खर्चा हुआ नहीं बट फिर भी आपने एडवांस में पे कर दिया, वो सारा किस में आता है, करंट एसेट्स में आता है। शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट्स जो हैं वो करंट एसेट्स में आती हैं। बैंक का बैलेंस आपका करंट एसेट्स में आता है।
नॉन करंट एसेट्स वो एसेट्स होते हैं जो आपके बिजनेस को अर्निंग कैपेसिटी को इम्प्रूव करते हैं। वो कौन कौन से हैं? जैसे प्लांट, मशीनरी, बिल्डिंग, ये बिजनेस को चलाने में, उसकी कमाई करने में हेल्प करते हैं। ये जनरली 3 से 5 या 5 से ज़्यादा टाइम के लिए आपने एक्वायर किए होते हैं, तो ये लॉन्ग टर्म एसेट्स हैं। फिर आपके पास है फैक्टिशियस एसेट्स। ओके, अब लॉन्ग टर्म फैक्टिशियस तक जाने से पहले हम इसे कर लेते हैं कि लॉन्ग टर्म एसेट्स जो आपके पास हैं, दो कैटेगरीज में डिफाइन कर दिया हमने। ओके, क्या क्या दो कैटेगरीज हैं? एक तो है टेंजिबल और दूसरा है इनटेंजिबल। ओके, टेंजिबल विच कैन बी टच्ड, okay, and we can, like, this is tangible assets. Okay, intangible assets है, जैसे गुडविल है, रेपुटेशन ऑफ द फर्म है, जिसको हम ऑब्जर्व कर सकते हैं, फील कर सकते हैं, मगर टच नहीं कर सकते। वो सारे एसेट्स किसमें आ जाते हैं? आपके पास इनटेंजिबल एसेट्स में आ जाते हैं। ओके, कॉपीराइट हो गया, पेटेंट्स हो गया, कंप्यूटर का सॉफ्टवेयर हो गया, इसको आप ऑब्जर्व कर सकते हो, इसकी फंक्शनिंग को, बट ये आप क्या कर सकते हो? इनको टच नहीं कर सकते हो। तो ये आपके नॉन करंट एसेट्स का पार्ट है। ओके, टेंजिबल विच कैन बी टच्ड एंड इनटेंजिबल विच कांट बी टच्ड बट कैन बी फेल्ट और ऑब्जर्व्ड। ओके, फिर आ जाओ फिक्टिशियस एसेट्स या नॉमिनल एसेट्स पे। वो एसेट्स जो आपको, आप कभी उनको कैश में रियलाइज़ नहीं कर सकते। जैसे शेयर इशू एक्सपेंसेस हो गए, मतलब शेयर्स बेचने, उसके खर्चा, बेचने के लिए जो खर्चा किया आपने, एडवर्टाइज करने के लिए जो खर्चा किया, वो आपने, उसका बेनिफिट आपको कैश में पता ही नहीं लगता कि कितना हुआ कितना नहीं हुआ। ओके, फिर एडवर्टीज़मेंट एक्सपेंस, जो आप एडवर्टीज़मेंट करते हो, मान लो आपने 100 करोड़ रुपए लगा दिया 5 साल के लिए किसी एडवर्टीज़मेंट पे, वो 5 साल के ऊपर बढ़ता रहेगा। ओके, मगर उससे क्या बेनिफिट आपने जनरेट किया है वो डायरेक्टली नहीं पता लगेगा आपको। ओके, और मतलब ये बेनिफिट्स इजीली पता नहीं लगता है, बट ये एसेट साइड में इसलिए लिखे जाते हैं ताकि जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है उसमें से ईयर बाय ईयर ये डिडक्ट किए जा सकें, प्रॉफिट्स में से इनको ख़त्म किया जा सके, फिर राइट ऑफ किया जा सके ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम जो आपने खर्चा किया है। तो ये आपके पास क्या है? फैक्टिशियस एसेट्स। सो दिस इज़ ऑल फॉर टुडेज़ लेक्चर।